Hello everyone, how are you? Okay, now in the previous lecture we discussed about some very important, very short question answers. Okay, now उसी lecture को हम continue करेंगे in our next part. तो हमारे next part के अंदर हम उसको continue करेंगे और हम कुछ और important question answers solve करेंगे. Now, okay. Now next question is, other than being a genetic material, what are the other function of RNA? RNA act as a messenger, structural, adapter and catalytic molecule. Okay, so other than being a genetic material, okay, what are the other function of RNA? Okay, RNA, in the previous lecture we discussed about the RNA as a genetic material for viruses. Okay, so when RNA work like as a genetic material, so what is the other function of RNA? Okay, the other function of RNA, it means RNA act as a messenger RNA, structural RNA and adapter and catalytic मॉलिक्यूल. ओके, कैसे क्या क्या करता है फंक्शन? आरएनए मैसेंजर आरएनए की जैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चरल, एडाप्टर एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल की जैसे भी क्या करता है? वर्क करता है. ओके, लिस्ट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड, अ न्यूक्लियोटाइड हैज अ नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ओके, it is very important कि nucleotide and nucleoside. Okay, so there are 2 terms, one is nucleotide and second is nucleoside. Okay, so nucleotide, so in the nucleotide all 3 components are present. One is nitrogen base, pentose sugar and phosphate group. But when we talk about the nucleoside, okay, so in the nucleoside nitrogenous base and pentose sugar is present. Okay, so there is phosphate group is absent. Okay, so but here we discuss about the nucleotide. So nucleotide, it means ki nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. And nucleoside, nucleoside में क्या होगा? nitrogenous base and pentose sugar. नाउ वन मोर थिंग कि भाई न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को हम यूं भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. ओके, तो इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. And what is nucleoside? The nucleoside is nitrogenous base and pentose sugar. This is a nucleoside. Now next question, in a DNA helix the distance between 2 base pair is. Okay, तो when DNA helix, okay, DNA helix में जो distance है 2 base pairs की कितनी डिस्टेंस होगी? दिस इज अ 0.34 nm. कितनी डिस्टेंस होगी? 0.34 nm. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स. 2 बेस पेयर्स की क्या डिस्टेंस है? 0.34 nm. व्हाट आर हिस्टोन्स? ओके, ये रहा इंपॉर्टेंट. व्हाट आर हिस्टोन्स? in the previous lecture we discussed about the charge of the histone protein. Okay, so what is histone? Histones are a set of positively charged proteins. Okay, what are histones? Basically histones, this is a proteins. Okay, and which charge is present on histone? This is a positively charged. And what is the function? That helps in DNA helix packaging. ये किसमें हेल्प करता है? That help, जो हिस्टोन है वो किसमें हेल्प करता है? इन DNA helix packaging. DNA helix की पैकेजिंग में क्या करता है? हेल्प करता है. Now next, how many base pairs of DNA helix are present in a nucleosome? एक न्यूक्लियोसोम में कितने DNA helix are present in a nucleosome? तो 200 base pair of DNA helix are present in a nucleosome. कितने base pairs present हैं? 200 base pairs. कितने base pairs present है? 200 base pairs present. Base pairs of DNA helix are present in nucleosome. Nucleosomes में कितने base pairs present है? 200 base pairs of DNA helix.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट दैट प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। किसने प्रूव किया था कि डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल का? दिस इज द हर्शे एंड चैश। उन्होंने प्रूव किया था इन 1952 में कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल की जैसे क्या करता है, वर्क करता है। नेम द एंजाइम दैट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि जो नेम द एंजाइम्स that uses a DNA template to catalyze the polymerization reaction of deoxynucleotides। तो नेम ऑफ द एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज किसमें हेल्प करता है, यूज आता है डीएनए टेम्पलेट के अंदर टू कैटलिस्ट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इट मीन्स कि फॉर्मेशन चैन फॉर्म करते हैं। ओके, तो इट मीन्स कि वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की क्या कर रहे हैं, चैन फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज किसके अंदर कौन सा रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम, दिस एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ओके, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट? द रीजन ऑफ ई कोलाई, the reason in coli where the replication start, the reason where replication is start in E. coli, this is known as the origin of replication। तो ये कहाँ होगा, ORI, this is also known as the ORI, origin of replication। ओके, तो ये कहाँ है, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल कि अगर हम यू देखें तो ये वाली एक साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो दिस साइट इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो दिस इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। What is the difference between DNase and depolymerase? कि DNase and depolymerase में क्या डिफरेंस है? DNase एंजाइम डाइजेस्ट द DNA strand। DNase क्या करता है, DNase एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट द DNA strand, और जो DNA पॉलीमरेज है इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, हमने अभी पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज आता है। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इट मींस कि वो चेन को फॉर्म कर रहे हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो कौन सा एंजाइम यूज में आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। और जो डाइजेस्ट कर रहा है वो कौन है, डीएनए स्ट्रैंड्स को जो डाइजेस्ट कर रहा है, दिस इज अ डीएनएज। ओके, तो डीएनए तो उसको डीएनए स्ट्रैंड को डाइजेस्ट करेगा, वाइल डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन रेप्लिकेशन फोर्क। द रीजन ऑफ डीएनए where replication take place is called a replication fork। DNA strands uncoil to form a Y shape। Okay, like this कि this is a DNA strand। Okay, ये किस DNA strand है, this is a coiled DNA strand। Okay, this is a coiled DNA strand। Okay, तो this is coiled DNA strand when uncoiled, ये uncoiled होता है तो like this कि ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो लाइक दिस ये वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो दिस वाई शेप स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क। दिस वन इज नोन एज द रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो वेयर डीएनए रेप्लिकेट टेक प्लेस, यहां से ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होंगे वो कहां से होंगे, यहां से होंगे। ओके, तो दिस portion या this point is known as the replication fork। okay, कि take place कि जहाँ region that DNA where replicate take place called replication fork, कि ये यहाँ से क्या होगा, replication fork बनेगा। DNA strand uncoiled to form a Y shape। okay, तो ये पहले कैसा था, coiled था, अब coiled होके ये क्या हो गया, open हो गया like this कि इसने क्या बना लिया, Y shape एक
स्ट्रक्चर बना लिया, तो दिस स्टैंड्स which is participate in the replication. Okay, so this point is known as the replication fork. Okay, now next, among Ramapithecus, Australopithecus and Homo habilis who properly did not eat meat. Okay, so what is the right answer? Homo habilis, they did not eat meat. Now next, by what Latin name the first hominid was known? Okay, तो first hominid was known as the Homo habilis. Okay, this is the first hominid. Now next, who among the Dryopithecus and Ramapithecus was more man-like? Okay, when we compare Dryopithecus and Ramapithecus, okay, दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में से कौन है जो मोर मैन लाइक, मैन की जैसे दिखते हैं? तो दिस इज द रामापिथेकस. रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फाउंडर इफेक्ट? When a new species evolve or by a small number of individuals from a large population, the loss of genetic variation in the new species is called as the founder effect. कि what is founder effect? For example, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मान लो दिस इज अ पॉपुलेशन. ओके, ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे देयर आर पॉपुलेशन. ओके, ओके, दिस इज अ पेरेंटल पॉपुलेशन. ये क्या हमारी पेरेंटल पॉपुलेशन है. ओके, नाउ इन दिस पेरेंटल पॉपुलेशन सम आर माइग्रेट. ये क्या कर गए? माइग्रेट. ये क्या कर गए हैं? माइग्रेट. तो इन माइग्रेशन में जैसे माइग्रेशन में ये कुछ माइग्रेट कर गए, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गए? माइग्रेट हो गए. ठीक है, तो ये जब माइग्रेट हुए तो दिस इज अ, जब ये माइग्रेट हुए तो और आगे डेवलप हुए, कपल ग्रोथ और आगे डेवलप हुए. तो ये इसके अंदर जब ये और आगे ग्रोथ हुई तो इसके अंदर नाउ स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर जो ग्रीन वाली पॉपुलेशन है ये स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कम दिख रही है. ठीक है, देखो अब जब ये और आगे, अब ये फाइनली यहाँ पे ये माइग्रेट हुए. देखो दिस इज द फर्स्ट पेरेंटल पॉपुलेशन. यहाँ पे हमने दो स्पीशीज ली. ठीक है, दिस इज द येलो एंड ग्रीन. देयर आर टू पॉपुलेशन स्पीशीज. ठीक है, अब ये येलो और ग्रीन में से कुछ पोर्शन लाइक दिस पोर्शन उसने क्या किया? ये माइग्रेट कर गया. ये क्या कर गया? माइग्रेट कर गया. इतना पोर्शन कहां चला गया? माइग्रेट कर गया. तो जब ये माइग्रेट करा तो इसमें हमारे येलो वाली स्पीशीज की पोजीशन ज्यादा थी और ग्रीन वाली स्पीशीज की पोजीशन कम थी. ठीक है, अब ना जब ये और इसके अंदर और डेवलपमेंट हुआ और इसने ग्रो किया तो अब देखो येलो वाली स्पीशीज कम हो गई और ग्रीन वाली स्पीशीज ज्यादा हो गई. अब जब हमारी न्यू स्पीशीज जो डेवलप हो रही है, न्यू स्पीशीज जब डेवलप होगी तो उस न्यू स्पीशीज में ओनली हमें कौन से मिल रहे हैं? ग्रीन. ओनली हमें क्या मिल रही है? न्यू ग्रीन स्पीशीज. तो व्हेन अ न्यू स्पीशीज इवॉल्व बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या हो गई? न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई है बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन. ये इतनी सारी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट में से ही न्यू स्पीशीज डेवलप हुई है. द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, किसकी वजह से? लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. तो इन द न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. जो न्यू स्पीशीज है दिस इज नोन एज द फाउंडर इफेक्ट. इसे हम क्या कहेंगे? फाउंडर इफेक्ट. तो दिस इज इफेक्ट इज नोन एज द फाउंडर इफेक्ट. तो व्हेन अ न्यू स्पीशीज इवॉल्व बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन में से कुछ ही माइग्रेट करके न्यू स्पीशीज फॉर्म हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फाउंडर इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट, among the 5
factors that are known to affect Hardy-Weinberg principle equilibrium. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी है, among the 5 factors that are known affect the Hardy-Weinberg equilibrium. कौन कौन से फैक्टर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं? तो 3 तो कौन कौन से हो गए? द 3 फैक्टर आर जीन फ्लो, सेकेंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड थर्ड इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ये 3 है. कितने इफेक्ट्स हैं? 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं. तो उस 5 फैक्टर्स में से 3 तो हमारे क्वेश्चंस में ही है. दिस इज द जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और अदर 2 कौन से हैं? म्यूटेशंस एंड सेकेंड इज नेचुरल सिलेक्शन. तो दिस इज वन मोर क्वेश्चन कि हाउ many factors which affect the Hardy-Weinberg equilibrium. How many factors which are affect the Hardy-Weinberg equilibrium? So there are 5 factors which affect the Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, the 5 factor is, first is gene flow, second genetic drift, third genetic recombination. Okay, now fourth is mutation and fifth is natural selection. Okay, इसमें थर्ड आपके क्वेश्चन में है, 2 आंसर्स में है. आपकी डायरेक्ट क्यों भी आ सकता है कि 5 फैक्टर्स बताइए, तो आपको 5 फैक्टर्स सारे लर्न कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम वन फिश लाइक रेप्टाइल दैट इवॉल्व फ्रॉम अ लैंड रेप्टाइल अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, तो 200 मिलियन ईयर्स अगो fish like reptile, this is the ichthyosaurus, are fish like reptile that evolved from land reptiles about 200 million years ago. Okay, now next question. For a long time it was believed that life originated from decaying matter. Okay, what is this theory known as? Name the scientist who experimentally disproved this theory. Okay, तो जो according to the theory of spontaneous generation, इसके अंदर क्या है? लाइफ originated from decaying matter. ओके, और इसको किसने डिस्प्रूव किया था? लुईस पॉस्चर ने. ओके, तो थ्योरी कौन सी है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन. कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिकेइंग मैटर. व्हाट इज दिस थ्योरी नोन? देखो, देयर आर 2 मोर क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग मैटर. किससे ओरिजिन हो रही है? डिकेइंग मैटर से. ओके, एंड ये यू भी है क्वेश्चन कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग मैटर. इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. ओके, इसको डिस्प्रूव किसने किया था? लुईस पॉस्चर ने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the abiotic origin of life is in progress on a planet other than Earth, what should be the condition there? Okay, if the abiotic origin of life is in progress on a planet other than Earth, then extremely high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3, H2 and water vapor should be the key condition there. Okay, तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए. Now next, name the person who proposed the population tends to increase geometrically while food production is increased arithmetically. Okay, तो name the person who proposed the population tends to increase the geometrically while food production increasing the arithmetically. तो Thomas Malthus proposed the population tends to increase geometrically while the food production increase the arithmetically. How it is geometrically? Like this कि 2, 4, 16, 132 like this. कि बात कि मतलब ये जियोमेट्रिकली कैसे इंक्रीज हो रही है? लाइक दिस. और अर्थमेटिकली कैसे इंक्रीज हो रही है? लाइक दिस 2, 4, 6,
8. ओके, तो इट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकली फास्टर इंक्रीज हो रही है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है, वाइल जो फूड प्रोडक्शन है वो स्लो इंक्रीज हो रहा है, जबकि जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन क्या है, बहुत जल्दी इंक्रीज फास्टर ग्रो कर रही है. नाउ नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट who had also come to similar conclusion as that of Darwin about natural selection as a mechanism of evolution. Which place did he visit to come to conclusion? Okay, Alfred Walser was the naturalist and worked in the Malay archipelago. He also came up to the similar conclusion as that of Darwin about natural selection as a mechanism of evolution. Okay, now same mechanism पे वो आ गए थे दोनों. Now next question, name any two vestigial organs found in the human body. Okay, तो vestigial organs कौन कौन से हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, विजडम टीथ, टू वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ओके, ये दो ऑप्शन, दो आंसर्स, मतलब दो ऑर्गन्स हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ. ओके, दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें मिलते हैं. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पेशिएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज. ओके, तो स्पेशिएशन के अंदर क्या अकॉर्डिंग है, तो म्यूटेशन आज द कॉज ऑफ स्पेशिएशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डी व्रीज. क्या होता है, म्यूटेशन. नेम द फिनोमिना बाय विच रैपिड स्पेशिएशन टेक प्लेस. ओके, तो दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. नाउ नेक्स्ट, नेम द टू साइंटिस्ट who set up a special experiment to prove operant theory of the origin of the life. Okay, so name two scientists who set up the special experiment to prove operant theory of the origin of life. So Urey and Miller were the two scientists who set up a special experiment to prove the operant theory of the origin. Scientists कौन कौन से हैं, Urey and Miller. Now next, name the common ancestor of apes and man. Okay, who is the common ancestor of ape and man? Dryopithecus. Okay, what is the answer? Dryopithecus is the common ancestor of ape and man. Okay, ये just reverse भी हो सकता है. Dryopithecus किसका common ancestors है, तो what is the answer? The answer is ape and मैंस का ये कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, यूं भी है कि एप्स और मैन का कौन कॉमन एंसेस्टर्स है, दिस इज द ड्रायोथिकस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ एम्फीबियंस. ओके, तो विच पीरियड इज नोन एज द कार्बोनिफरस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ एम्फीबियंस. What provide energy for abiotic synthesis or primitive earth? Okay, what provide energy for abiotic synthesis or primitive earth? Very high temperature due to lightning or UV rays. Okay, what provide energy for abiotic synthesis of primitive earth? तो उसका क्या होगा, very high temperature बहुत हाई था, due to the lightning of UV rays provide energy for the abiotic synthesis. Okay, abiotic synthesis, biotic and abiotic factors होते हैं, तो abiotic factors के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करा था, एक तो हाई टेम्परेचर और ड्यू टू लाइटनिंग ऑफ यूवी रेज, वो उनको क्या करा रही थी, प्रोवाइड करा रही थी एनर्जी फॉर एबायोटिक सिंथेसिस. Who showed that life comes from pre-existing life. Okay, very important कि who show that life comes from pre-existing life. So this is the Louis Pasteur showed that जो life है
comes from the pre-existing life. Name the two scientists who set up special experiment to prove operant theory of the origin. Urey and Miller. Now next, name the common ancestor of apes and man. Okay, so this is the Dryopithecus. Age of amphibian, Carboniferous period is known as the age of amphibian. Okay, now next, which period is referred to as the age of reptiles? Okay, which period is referred to as the age of reptiles? So this is the Jurassic period is referred to as the age of reptiles. So this is the Jurassic period. Now next, okay, when we talk of functional macromolecules, example protein as enzymes, hormones, receptors, antibiotics, towards what are they evolving? Okay, so when we talk of functional macromolecules कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, एंटीबायोटिक्स है. ओके, टुवर्ड्स व्हाट आर दे इवॉल्विंग? वो क्या इवॉल्व करते हैं? तो फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स लिविंग फॉर्म्स. वो क्या फॉर्म करेंगे? लिविंग फॉर्म्स. ओके, नाउ why does Swiss cheese have a big hole? It is very important कि why does Swiss cheese have a big hole? तो Swiss cheese के अंदर main important a bacterium called Propionibacterium. Okay, Propionibacterium shermani. This is the important कि ये जो बैक्टीरिया है produce a large amount of carbon dioxide during fermentation. फर्मेंटेशन के टाइम में जो बैक्टीरिया है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज करता है. तो दिस इज द रीजन ऑफ बिग होल इन स्विस चीज. तो स्विस चीज के अंदर जो बिग होल है उसका क्या रीजन है? यही रीजन है कि जिसकी वजह से दिस बैक्टीरिया की वजह से उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? होल्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट आर फर्मेंटर्स? फर्मेंटर्स क्या है? वेरी लार्ज vessels which are used for industrial scales fermentation are called fermenters. Okay, so very large vessels which are used for industrial scales fermentation are called fermenters. Okay, now next, why do we prefer to call secondary wastewater treatment as biological treatment? Okay, so why do we prefer to call secondary wastewater treatment as biological treatment? So secondary treatment of wastewater involves action by microbes. किसके थ्रू होता है? इन्वॉल्व्स एक्शन बाय माइक्रोब्स. ड्यू टू दिस सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तो वहां पर क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है. किसके थ्रू? बाय माइक्रोब्स. तो एक्शन बाय माइक्रोब्स, दैट इज द रीजन कि जो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है दिस इज नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. वन मोर क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? Okay, now why it is known as the biological treatment? So which treatment is known as the biological treatment? The secondary waste water treatment is known as the biological treatment. Or why it is known as the biological treatment? Because in the secondary treatment of water किसके अंदर क्या involve है? Action होता है by microbes. Now next, why is distillation required for producing certain alcoholic drink? Okay, तो distillation क्यों requirement है? Because distillation done remove most of water and impurities from certain alcoholic drink. That's why distillation is very important. क्या remove करेगा? Impurities. Okay, and remove most of the water को remove करेगा, impurities को remove करेगा. इसलिए कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर डिस्टिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गिव एनी टू माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी. ओके, दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस thuringiensis. ओके, these are the two very important microbe
organisms, microbes which are used in biotechnology. What is the source origin for eco-R1 restriction endonuclease? Okay, the source organism for eco-R1, so restriction endonuclease, this is the E. coli. Now next, name any genetically modified crop. Okay, genetically modified crop कौन सी है? First is BT cotton is a genetically modified crop and contains genes from Bacillus thuringiensis which help in the killing pest. Okay, name any genetically modified crop. So this is the BT cotton. BT cotton का क्या है? Bacillus thuringiensis. Okay, किसमें हेल्प करती है? किलिंग पेस्ट में क्या करती है? ये हेल्प करती है. ओके, विच स्पेशीज ऑफ पेनिसिलियम प्रोड्यूस रोक्यूफोर्ट चीज. ओके, रोक्यूफोर्ट चीज के अंदर कौन सा है? पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी. ओके, दिस इज द स्पेशीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द स्टेट्स इन्वॉल्व इन गंगा एक्शन प्लान. ओके, स्टेट्स कौन कौन सी है जो इन्वॉल्व है गंगा एक्शन प्लान्स में? दिस इज द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ओके, दीज आर द स्टेट्स विच इन्वॉल्व इन द गंगा एक्शन प्लान. ओके, ये जो स्टेट्स है ये गंगा एक्शन प्लान के अंदर क्या है? इन्वॉल्व है. ओके, नेम एनी 2 इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. ओके, 2 इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन कौन से हैं? First is lipase and second is pectinase. Lipase and pectinase. Okay, now name an immunosuppressor agent. Immunosuppressive agent कौन सा है? This is the cyclosporin A. What is the answer? Cyclosporin A. This is the immunosuppressive agent. Now, give an example of a rod-shaped virus. रॉड शेप वायरस का क्या एग्जाम्पल? इट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ द rumen of cattle and sludge of the sewage treatment. Okay, so what is the group of bacteria found in the both the rumen of cattle and sludge of the sewage treatment? This is the मिथेनोजन. ओके, दिस इज द आंसर, मिथेनोजन. ओके, नेम अ माइक्रोब्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज. ये हमारे डायरेक्ट यहाँ पे अलग क्वेश्चन इस तरह से पुटअप हो गया है कि माइक्रो कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्विस चीज के अंदर यूटिलाइज होता है. दिस इज द प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्माइनी. Write the most important characteristics that Aspergillus niger, Clostridium botulinum and Lactobacillus share. ओके, तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? तो ऑल ऑफ देम प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स. वो सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस क्या करेगा? सिट्रिक एसिड. इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिट्रिक एसिड. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्यूटेरिक एसिड. लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड. ये आपके मैच द कॉलम के टाइप के क्वेश्चंस में भी पुटअप हो सकते हैं कि मतलब कि आपके इसमें एस्परजिलस नाइगर या सिंपल अलग अलग भी पुटअप हो सकते हैं कि एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस करता है. तो दिस इज द सिट्रिक एसिड. एमसीक्यू में भी पुटअप हो सकते हैं. एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिट्रिक एसिड. क्लोस्ट्रिडियम क्या प्रोड्यूस, ब्यूटेलिकम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्यूटेरिक एसिड. एंड लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड. ओके, नाउ थैंक यू. इसके जो PDF है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन.